So good morning, students. So better let's continue with the revision from the chapter. Okay. So I'll be writing few questions on the board and you people will be solving. Then in that way only you can have better practice, right? So start doing better. Don't write the question. Hurry up. Find smallest 4-digit number which is a perfect square. PS means perfect square. Hurry up, bete. This PS is perfect square. Hurry up, bete. Don't sit free. Online students, you also better do the sums. If you will practice yourself, then only it will be beneficial for you in the exam. आप करो, then I'll do it. फिर आप अपने आंसर मैच करना बच्चे. Do this sum on the board. जल्दी जल्दी.
हरी अप एवरीवन। हाँ जी बेटा, आपने किया गुनूर? थर्ड वाला स्पॉट करो, थर्ड नहीं आ रहा था। हाँ जी, लुक ऑन द बोर्ड, जाओ आप। सी बेटे, smallest 4-digit number, it is 1000. In the revision test you got the question greatest 4-digit number. Now we have smallest 4-digit number, so it is 1000. smallest 4-digit हो, greatest 4-digit हो, तो इससे इसका आपको करना किससे है? लॉन्ग डिवीजन से। 3 3s are 9, remainder is 1, then we bring this 0 0 downwards, 3 का double 6. Now we want smallest 4-digit number. If we subtract something from this number, then we will get 3 digit. तो इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है एडिड वाला। तो एडिड वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? बड़ा। 6 के साथ 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 124, रिमाइंडर इज 24. So 24 will be added to 1000 so as to make it a perfect, so as to get a smallest 4-digit number which is a perfect square, that is 1024. आपने नंबर निकालना है, ना कि ये बताना कि कौन सा ऐड करेंगे। पुलकित गाने गा रहा है? यस, लग तो ऐसे ही रहा था। बहुत अच्छी बात है बेटी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड। क्या करोगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स बड़े ध्यान से निकालने हैं, सही होने चाहिए। वन, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, विच इज सिंगल 3. सो बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड? इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. थर्ड सम करवाओ, जल्दी जल्दी करना। अरे आंसर क्या लिख रही है? टोटल मतलब 5 आएगा, 2/2 आएगा। जाओ ठीक, बोर्ड पे देखिए बेटा। Now see the third question. सीमा makes a cuboid of side. एक cuboid है सीमा के पास जिसकी साइड है 5, 5 and 2. What is a cuboid in which all the 3 dimensions are not same? Yes. तो अब उस वो कितने, how many cuboids she needs to make a cube? What you have to do in this question? You have 5 into 2 into 5. This is the dimensions of the cuboid. सीधा आप लिखोगे required answer या required cuboids. ये बताना ना हमें कि कितने क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए। आप लिखोगे नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड इज
क्यूबॉइड मींस क्यूबॉइड मींस 3 डायमेंशन, मींस 3 का पेयर, 3 का ग्रुप, सॉरी। यहाँ पर 5 कितनी बार है? तो 1 5 we need and 2 is occurring only one time, 2 times 2 we need. So answer is 20. She needs 20 cuboids to make a cube. Last one, Gurkaran, आ जाओ कर दो. And do in a good handwriting. Rub this and do here upwards. नहीं ये मत करना ना, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, ये करना. You know, in case of subtraction, the term, the algebraic expression after from you have to write first. पहले ये लिखा माइनस, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है, जब भी आपने किसी एक्सप्रेशन को माइनस करना है, then you have to put that expression inside the bracket, otherwise your question will get wrong. When you are having minus sign outside, the sign of inside terms will get changed. This become minus, this become plus, this become minus. So after combining the like term, the answer is 25 ln plus 5l square. Okay. Those who have got the correct answer, that is very good, beta. और जिनके आंसर नहीं आए हैं, please do the practice at home. Otherwise, you will not be able to solve the sum in the exam here in the school. आप आओ. पीछे से चले जाओ, इधर आ, इधर आ. मल्टीप्लाई है, बानी आओ. क्यों कॉपी पे करना, इधर आओ. Shreya. Yes, beta. Here are the 3 sums. Everyone, start doing. A square plus B square minus 2A. ठीक है, आपने क्या लिखा? 9p minus 5q. अच्छा, यहाँ अगर स्क्वायर भी लगाना था, आपको कितनी बार बोला है बेटे, जब भी आपने फॉर्मूला लगाना है, a क्या है यहाँ पर, क्या है बानी? 9p. a का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब 9p का स्क्वायर होल स्क्वायर 5q होल स्क्वायर. ये क्या खचपच किया है?
2 इंटू प्लस थोड़ी आएगा, फॉर्मूले में माइनस है, ए स्क्वायर। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, आई एम डूइंग फुल सम फॉर यू अगेन बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर, जब ये फॉर्मूले में चला गया तो b आपका सिर्फ 5q है, माइनस 5q नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, प्लीज पे अटेंशन, 2 इंटू ए बी माइनस 2ab, 2 इंटू 9b प्लस this I am solving the left hand side abhi. 9 square is 81, 81 p square, 5 square is 25 plus 25 q square minus 90 pq plus 180 p. 81 p square, these are like 180 pq minus 90 pq is, ये आपका सॉल्व होके आ गया राइट हैंड। यहाँ पर सम थोड़ी छोड़ देना है, आपने तो शो करना है इसको किसके बराबर, इसके बराबर। अब नाउ देयर आर टू थिंग्स, ईदर यू सॉल्व द राइट, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर छोड़कर राइट हैंड साइड को दोबारा सॉल्व करो, ठीक है, या फिर कुछ नहीं समझ आता तो चुप करके ये सॉल्व कर दिया है, इसके बाद में एंड में लिख दो दिस इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज व्हाट 9p स्क्वायर प्लस 5q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर। नहीं याद रहता, नहीं कुछ समझ आता, ठीक है, तो चुप करके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, जब वो पूरा सॉल्व हो गया उसके बाद नीचे लिख दो 9 प्लस 5 की। वैसे तो नंबर नहीं कटेंगे, कटना भी हुआ अगर तो हाफ मार्क्स से ज्यादा नहीं कटेगा कि एक ही स्टेप मिसिंग है। बात समझ में आ गई? Hence you have started with the left hand side and you reached to the this is equal to the calculation. Hence shown, hence proved. दोबारा समझ आ गई? दोबारा बोल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करो, जहां तक सॉल्व होती है सॉल्व करो, उसके बाद चुप करके लिख दो इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो गिवन। ओके, अदरवाइज नहीं समझ, ऐसे नहीं लिखना तो राइट, जब आप वहां पे आइडेंटिटी लगाओगे आपके पास यही चीज आएगी, तो यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरी, ठीक है। Now see the next one. In the test, many students they have not found the means one question, ऐसा क्वेश्चन ही था उसमें 4 वैल्यूज आती थी z की, पता नहीं कौन सा ये था या कोई और, ये था 31z5. Now it is a multiple of 3. You have to see very carefully कि ये किसका मल्टीपल है, 3 का या 9 का, दोनों में सम ऑफ डिजिट्स करना होता है, इसने किया है। ये क्या लिख रहे हो बार बार 31z5 31z5, व्हाट इज दिस? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू राइट सम ऑफ डिजिट्स 3 + 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जब भी पेपर आया है इतने सालों में हमेशा ये क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 9, तो प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है ना कि ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। जो क्वेश्चन आपको पता है कि आएगा वो भी गलत करना है तो फिर फायदा है, फिर क्या, व्हाट इज द फन ऑफ स्टडिंग? प्लेइंग विद नंबर्स में मैंने आपको बताया एबीसी वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बट वो ज्यादा एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट। हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर जब भी ये चैप्टर सिलेबस में होता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन का। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स केयरफुली करना है, 5 6 7 8 9, इट इज 9 + 8, दिस इज वेरी इजी।
जो भी आपका सम आ गया उसको आपने उस टेबल के साथ इक्वेट कर देना, उस नंबर के टेबल के साथ इक्वेट करते जाना है जिसका वो मल्टीपल क्वेश्चन में है। अगर 9 का मल्टीपल लिखा होता तो 9 के टेबल से इक्वेट करते, अब 3 का टेबल मल्टीपल लिखा है तो 3 के टेबल से इक्वेट करोगे, मतलब इक्वल टू 3, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 6। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है एक बात। 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 18। अब आपको अपने माइंड में पता चल गया है, एक मिनट में 9 आएगा, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 21। जब आपने 21 के इक्वल इक्वेट किया तो आपको सोचना है कि 21 में से 9 को माइनस करूंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं थी बस। 9 plus z is equal to 3. You know how to solve the simple equations. आती है ना? z की वैल्यू निकालनी है तो 9 उधर जाके माइनस होगा, ना कि 3 माइनस होगा। इट इज -6, ये नहीं होगा। 6 माइनस 9, z की वैल्यू क्या आ गई -3, ये नहीं होगा। देन यहाँ 9 की वैल्यू 0, 9 माइनस 9 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 9 18 माइनस 9। So these are the 4 possible values of the z. आपका आंसर ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है रट्टे लगा रखे हैं। 31 z5 31 z5 श्रेया लिख के आएगी तो नंबर काटूंगी ना मैं। All right. So revise the chapter in which you have not done the maximum practice. Algebra करो, चाहे तुम playing with numbers कर लो, square and square roots कर लो, quadrilaterals करो. Pick one chapter, do 2 exercise of that chapter. Okay? Fine, beta. See you in the next class. Take care.